میرے ساتھ نکال لیں آج کا حوالہ مرکز کی انجیل اس کا 3 باب 7ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل 3 باب 7ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا، اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادومیہ سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدا کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی۔ پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا۔ چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ ان کو بڑی تاکید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا، اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ وہ یہ ہیں: شمعون جس کا نام پطرس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوانرگس یعنی گرش کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ آمین۔ ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں آیت با آیت۔ خداوند کے فضل سے ہم 3 باب تک پہنچ چکے ہیں اور ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ جب ہم نے دیکھا یسوع مسیح کی زندگی کو، یسوع مسیح کی شخصیت کو، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے، اور یسوع مسیح اختیار رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے اختیار کو مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے ظاہر کرتے ہیں، کبھی بدروحوں پہ، بیماریوں پہ، اور سبت پہ بھی یسوع مسیح کا ہم نے پچھلی بار اختیار کو دیکھا۔ اور یہی جو بات ہے مرکز کے انجیل کے ہر پیج پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے اور یسوع مسیح مالک ہیں، یسوع مسیح کا اختیار ان سب چیزوں پہ موجود ہے، یسوع مسیح تمام تر اختیار کو رکھنے والے ہیں۔ اسی بات کی نظر میں جب ہم لوگ ان چیزوں کے سوچ رہے ہیں اور یسوع مسیح کے مختلف معجزات کے بارے میں سوچتے ہیں، یسوع مسیح کے خداوند ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے سن کر سن ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز میں سے یسوع مسیح کے جلال کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، پر جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں، تو ضرور اس میں سے یسوع مسیح کے جلال کو دیکھنے کی کوشش کریں، کہ یسوع مسیح کی طاقت کو دیکھنے کی کوشش کریں، یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کتنی بڑی طاقت والی اور جلال والی یسوع مسیح کی شخصیت ہے، جس کا ہر چیز کے اوپر اختیار ہے۔ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ اور اسی بات کے ذہن میں رکھتے ہوئے، سوچ میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے یسوع مسیح کے جلال کو دیکھنا ہے، یسوع مسیح کی شخصیت کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، ہم 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا، اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی۔
ایک بڑی بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے تھی. یسوع مسیح جھیل کے کنارے پر موجود تھے اور گلیل سے ایک بہت بڑی جو بھیڑ تھی یسوع مسیح کے پیچھے آئی, اور یہودیہ سے آئی اور یروشلم سے آئی اور ادومیہ سے اور یردن کے پار اور سور اور سدہ کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ ایسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی. ایک بہت بڑی بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے آ رہی ہے. مرکز ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کیوں وہ بھیڑ آ رہی تھی, کیونکہ یسوع مسیح بہت بڑے معجزے کرتے ہیں. یسوع مسیح بہت بڑے معجزے کرتے ہیں. معجزے یسوع مسیح کیوں کر رہے تھے؟ معجزے یسوع مسیح اس وجہ سے کر رہے تھے, ہم اس کے لیے حوالہ دیکھ سکتے ہیں. اور لکھنے والے اس وجہ سے معجزے لکھ رہے تھے. یوحنا 20 باب اس کی 31 آیت کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے. آمین. تو یسوع مسیح انہیں کہتے بھی ہیں کہ معجزوں کی وجہ سے ہی تم ایمان لے آؤ, کہ یہ سب باتیں اس لیے لکھی گئیں کہ تم کس بات میں ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور ایمان لا کر نجات پاؤ. معجزے کی خاطر نہیں کیے جاتے تھے کہ یسوع مسیح ان کو کوئی بہت عجیب سا کوئی کام کر کے دکھا دیں کہ بس وہ حیران ہو جائیں, وہ پریشان ہو جائیں, وہ بولیں جی واہ کیا بڑی بات ہے, کیا ہی کام کر دیا. معجزے اس لیے یسوع مسیح کرتے تھے تاکہ وہ ایمان لائیں کہ یسوع مسیح کیا ہے, خدا کا بیٹا ہے. آگے ہم اس چیز کو دیکھیں گے بھی. اور لکھنے والے بھی مرکز, یوحنا, جو متی ہے اور لوکا, لکھنے والے بھی اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور ایمان لا کر ہم نجات پا سکیں. یسوع مسیح اس وجہ سے معجزے کرتے تھے اور اسی وجہ سے لکھنے والوں نے بھی یہاں پر لکھا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے کافی مشہور ہوتے جا رہے تھے. مختلف علاقوں سے یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے. مختلف علاقوں کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. 7ویں اور 8ویں آیت میں یہودیہ کا نام لکھا ہوا ہے, گلیل کا نام لکھا ہوا ہے, یروشلم کا نام لکھا ہوا ہے, ادومیہ اور یردن کے پار سے سور اور سدہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو دیکھا جائے تو گلیل جو ہے غریب علاقہ سمجھا جاتا تھا, اور وہاں پہ کافی لوگ جو تھے ایسے تھے جن کا تعلق مچھیرے تھے, کہ جو مچھلیاں پکڑنے کے کام سے تھا, وہ مچھیرے تھے. اور یہودیہ سے لوگ آ رہے تھے, پھر جو ہے یروشلم سے آ رہے تھے, کافی یہودی لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے. پھر ادومیہ سے آ رہے تھے. ادومیہ ایسا علاقہ تھا جس کے اندر مکس بریڈ لوگ تھے, مطلب ایسے یہودی لوگ جن لوگوں نے غیر یہودیوں کے ساتھ شادی کی ہو. تو اس قسم کے لوگ بھی آ رہے تھے, یہودی غیر یہودی آ رہے تھے. گلیل سے غریب لوگ آ رہے تھے. پھر سور اور سدہ سے لوگ آ رہے تھے جو کافی امیر علاقے سمجھے جاتے تھے. امیر علاقے سے لے کر غریب علاقے تک, یہودیوں سے لے کے مکس بریڈ یہودیوں تک, اور سور اور سدہ جن میں یونانی زیادہ تر لوگ پائے جاتے تھے, تمام تر لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے, کیونکہ یسوع مسیح کے کام اتنے زیادہ تھے, یسوع مسیح کے معجزے اتنے بڑے تھے. اس وجہ سے وہ لوگ آ رہے تھے یسوع مسیح کے پاس. یسوع مسیح مشہور ہوتے جا رہے تھے, اتنے زیادہ لوگ یسوع مسیح کے پاس آ گئے. تو ہم نے کیا پہلی بات کی کہ لوگ جو تھے یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے, اور لکھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو آ رہے تھے اور ہم لوگ جو اس چیز کو پڑھ رہے ہیں, ان چیزوں کو پڑھنے سے ہم لوگ جو ہے نجات پائیں. پر جو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک اور حوالہ, یوحنا کی انجیل 6 باب 36 آیت, کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے, پھر بھی ایمان نہ. جی, یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم نے دیکھ بھی لیا پر تم ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں پر اگر آپ سیاق و سباق میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے بہت زیادہ, تقریباً جو 5000 صرف مردوں کو وہاں پہ بتایا ہوا ہے, عورتیں ہمیشہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے بچے بھی ہوں گے, تو جو ہے کافی زیادہ, تقریباً 15-20 ہزار کے قریب لوگوں کو جب یسوع مسیح نے کھانا کھلایا تو ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ کس حد تک آ رہے تھے یسوع مسیح کے پاس؟ یہ لوگ آ رہے تھے معجزوں کے لیے. لکھا ہوا ہے, صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ جو ہے آس پاس سے لوگ آ رہے تھے, کیونکہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے.
کیونکہ یسوع مسیح بہت بڑے کام کر رہا تھا، اس وجہ سے لوگ آ رہے تھے، لوگ جو ہے اپنی جو ہے احتیاجیں دور کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے انہیں شفا دیں اور یا پھر ان کے کسی بیمار کو شفا دیں۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں۔ یسوع مسیح کے پاس اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے کہ یہ خدشہ تھا کہ وہ یسوع مسیح کو دبا دیں گے، آپس میں دب کے جو ہے یسوع مسیح کو، اتنے وہ لوگ تھے کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح سے مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب بہت زیادہ لوگ ہوں اور وہ یسوع مسیح کو صرف ٹچ ہی کر لیں اور اس کو چھو لینے سے ہی لوگ جو ہے نجات پا رہے تھے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو چھو لینے سے وہ لوگ شفا پا لیتے تھے، اس طرح سے وہ یسوع مسیح کو صرف ٹچ کرنے کی کوشش کرتے، اور اتنا جب بڑی عوام ہو جائے تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ کشتی کا انتظام کرو، کیونکہ یسوع مسیح انہیں کلام بھی سنانا چاہتے تھے، یسوع مسیح انہیں شفا بھی دینا چاہتے تھے۔ یسوع مسیح نے کشتی کا انتظام کرنے کے لیے کہا کہ کشتی میں سے ہو کر یسوع مسیح انہیں مخاطب کریں، اور 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا، چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں۔ کافی لوگوں کو یسوع مسیح نے مختلف بیماریوں سے رہا کیا تھا، لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے اور اسے چھونا چاہ رہے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پراسپیرٹی گاسپل میں یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے، شفا پانا چاہ رہے تھے، پر ان لوگوں کے بارے میں یسوع مسیح، بہت سے لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے، ان کے بارے میں یسوع مسیح کیا کہہ رہے تھے کہ تم ایمان نہیں لاتے، تم نے معجزہ تو دیکھا ہے پر تم ایمان نہیں لاتے۔ بہت سے لوگوں کا ایمان جو تھا صرف معجزے کی حد تک تھا کہ وہ معجزہ دیکھیں، شفا پائیں، بس اس حد تک تھا، وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ لوگ پراسپیرٹی گاسپل کو مانتے تھے، آپ مان سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اپنے مقصد کے لیے آ رہے تھے، ان کو خوشخبری اس حد تک پسند تھی کہ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے ان کو شفا دے، ان کی بیماریوں کو ٹھیک کرے۔ یسوع مسیح جب لوکا کی انجیل میں مڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ اپنی زندگی سے بھی دشمنی نہیں کرتا وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی خودی کا انکار نہ کرے، اپنی جان سے بھی نفرت نہ کرے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، تو سب لوگ، کافی زیادہ لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے آ رہے تھے وہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے آ رہے تھے، وہ لوگ صرف اپنا مفاد پورا کرنا چاہتے تھے۔ اگر اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے تو سوال یہ ہے کہ اتنے جب لوگ تھے تو یسوع مسیح کو جب وہ مصلوب کرنے والے تھے تو اس وقت میں کتنے زیادہ لوگ ان میں سے یہی کہہ رہے تھے کہ اسے مصلوب کرو۔ ان کی مشکلات حل ہو گئیں، پر ان کی پوری امید جو ہے اس پہ یسوع مسیح پورے نہیں اترے۔ کیا وہ ان کی امید تھی کہ یسوع مسیح ایک ایسی سلطنت بنائیں جو رومی حکومت کو ختم کریں، یہودیوں کی حکومت ہو؟ لوگ مختلف چیزوں کی وجہ سے آتے تھے یسوع مسیح کے پاس، اور یسوع مسیح جو تھے یہ سب کچھ جانتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، لوگ کس خواہش سے آ رہے ہیں۔ تو ہم بھی خدا کے پاس مختلف امیدوں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی خدا کے پاس مختلف امیدوں سے آتے ہیں۔ شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پراسپیرٹی گاسپل نہیں سناتے، آپ کو پراسپیرٹی گاسپل نہیں سنایا جا رہا، پر کیا آپ پراسپیرٹی گاسپل کو مانتے ہیں؟ آپ کس طرح جان سکتے ہیں کہ خوشحالی کی خوشخبری، پیسے کی خوشخبری کو آپ کیسے مانتے ہیں؟ مطلب جب آپ کو بس خدا ایک جو ہے لینے کا آپ کے لیے بس ایک ذریعہ ہو کہ خدا سے میں کسی طرح سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں، خدا میری احتیاج کو دور کرے، میری بس یہی امید ہے، میری امید پہ خدا پورا ہوتا رہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے مجھے یہ سب کچھ دے دے۔ اور پھر جب خدا ہماری امیدوں پہ نہیں اترتا، ہمیں جو چیز چاہیے وہ چیز ہمیں نہیں دیتا، روٹی، کپڑا، مکان، شفا، تو پھر ہم جو ہے خدا کی تذلیل کرتے ہیں، جس طرح ان لوگوں نے کی۔ مطلب ان کو کچھ مل جاتا تھا، ان لوگوں کو روٹی مل گئی جو ہے نا 6 باب میں، پر بادشاہ جس قسم کا بادشاہ جاتے تھے جو انہیں روٹی دیتا رہے، اس قسم کا بادشاہ انہیں نہیں ملا۔
तो वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। इसी तरह ये लोग भी बहुत सी उम्मीदों के साथ आ रहे थे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उन्हें कलाम सुनाना चाहते थे, पर उन लोगों की उम्मीदें सिर्फ, बहुत से लोगों की, ज्यादातर लोगों की उम्मीदें सिर्फ शिफा तक की ही थी। हमारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग खुदा को एक मतलब पूरा करने का जरिया समझे। हमें कैसे पता चल सकता है हम खुदा को मतलब पूरा करने का जरिया समझते हैं? अपनी दुआएं आपने कभी सुनी है? अपनी दुआ आप कभी जो है ना, जो आप दुआ करते हैं उसके ऊपर जरा गौर करना है। खुदा मेरी जो बीमारी है उसको ठीक कर दे, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर दे, मेरे पड़ोसी के साथ रह, वो जो बंदा जा रहा है उसके साथ रह, दाएं बाएं के बंदे के साथ रह, मुल्क पाकिस्तान, अफ्रीका और अमेरिका को बरकत दे। मतलब बरकत, हम लोगों के जहन में बरकत ये है कि बस जी शिफा हो, रोटी पूरी हो, वड्डी गड्डी होए, वड्डा घर होए, तो ये जो है हम कहते हैं जी कि ये बरकत है। हम लोग ये नहीं कहते कि खुदा मेरी मदद करके मैं पाक जिंदगी गुजारूं, मुझे अपने जलाल की जिंदगी गुजारने का फजल दे। और हम लोग समझते हैं कि खुदा हमें सिर्फ देने के लिए बैठा हुआ है, इन लोगों की तरह यीशु मसीह को वो सिर्फ देने के लिए बैठा हुआ। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अपनी जान भी मुझे देनी पड़ेगी, तो वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। तो बड़ा क्राउड, बड़े लोग पीछे आना, यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, वो इस चीज की जमानत नहीं था कि ये सब लोग निजात पा चुके थे। इन सब लोगों की जिंदगियां तब्दील हो चुकी थी। चर्च के अंदर भी ज्यादा लोगों का हो जाना, चर्च के बाहर भी लोगों का बढ़ जाना किसी चीज की जमानत नहीं है कि आपकी जिंदगी तब्दील हो गई है। हमें अपने दिल के ऊपर गौर करने की जरूरत है। क्या हम खुदा के पास इन लोगों की तरह सिर्फ अपने मफाद को पूरा करने के लिए आते हैं, या फिर हम खुदा के जलाल के लिए जीना चाहते हैं? सिर्फ हम खुदा से लेना ही नहीं बल्कि उसको अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ देना भी चाहते हैं। तो यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह चूंकि खुदावंद है, वो हमारी हर चीज का खुदावंद है, और हम पर यह लाजम है कि अपना सब कुछ उसे दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है काफी मशहूर थे, काफी लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे, और जो है यीशु मसीह के बारे में गवाही भी आगे बदरुएं देती नजर आती हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, यीशु मसीह मशहूर थे, यीशु मसीह ने मौजे करते थे, यीशु मसीह मशहूर थे। यीशु मसीह ने, खुदा खादिम जॉन मकार्थर कहते हैं कि मुल्क में से एक तरह से बीमारी को ही खत्म कर दिया। इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह ने बीमारी को ही खत्म कर दिया। यीशु मसीह के पास इख्तियार था हर बीमारी को खत्म करने का। यीशु मसीह जब मौजा करते थे, लोग आते थे, इंस्टेंट रिहाई शिफा, ऐसी शिफा जो नजर आती थी, छोटी बीमारी जो ठीक हो सकती थी पर अरसा लगता था, यीशु मसीह 1 सेकंड के अंदर ठीक कर सकते थे। लाइलाज बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती थी, बंदा पैरालाइज है, यीशु मसीह उसको भी ठीक कर देते, मुर्दा आदमी को जिंदा करते थे। यीशु मसीह ये सब काम कर सकते थे। यीशु मसीह खुदावंद थे, हर चीज पे इख्तियार यीशु मसीह रखते थे। तो अगर कोई ऐसा शख्स हो जो मौजज़े कर सकता हो, तो वो बहुत मशहूर होगा। वो बहुत नहीं, बहुत बहुत मशहूर होगा। अगर वो मशहूर होगा तो वो यीशु मसीह से भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा। अगर इतने कोई मौजे कर सकता है आज, यीशु मसीह जितने ही मौजे कर ले, तो यीशु मसीह जितने उस वक्त मशहूर थे आज वो ज्यादा मशहूर होगा। क्यों? क्योंकि आजकल है इंटरनेट का दौर, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पे बात धूम मच जाती है और लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। तो अगर टीवी चैनल वाले शिफा दे सकते हैं, अगर टीवी चैनल वाले शिफा दे सकते हैं, तो पूरी दुनिया को तो फिर उनके पास ही होना चाहिए। वही मुड़ मुड़ लोग क्यों उनके पास होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोगों की सिर्फ बाजू और टांग और कान की दर्द क्यों ठीक होती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो है देखने वाली बात है कि जब कोई मौजज़ा करे तो कितना वो मशहूर हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह को हाथ लगाने के जाते, यीशु मसीह को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा रबी कोई भी नहीं था। बहुत से रबी मौजूद थे यीशु मसीह के दौर में, बहुत से सिखाने वाले यीशु मसीह के दौर में होंगे, पर ऐसा रबी कोई भी नहीं था जिसके पास इतने लोग आते हों। क्योंकि यीशु मसीह जैसे काम भी कोई नहीं कर सकता था कि हर किस्म की बीमारी पर यीशु मसीह का इख्तियार था। खुद आप सोचें, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कोई बंदा इधर ही मौजा कर दे तो कितने लोग आएंगे। मिसाल के तौर पे आप जो है एक बंदा जो वेंटिलेटर पे उसको ठीक कर दें, 1 सेकंड के अंदर ठीक कर दें, वो वेंटिलेटर अपना खुद हटाए, सब कुछ हटाकर खड़ा हो और आप बोले वाह
ये बात है जी, ये होता है मुआवजा। फिर आपको वो बोलेंगे चलें भाई आपने इसको ठीक कर दिया तो इधर 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 आप आए और यहाँ पे आके सब ठीक कर दें। एक अस्पताल में से आप बीमारी को खत्म करें तो कितने आप मशहूर हो जाएंगे। ठीक, अगर यीशु मसीह ने इतने ज्यादा लोगों को शिफा दे दी तो इतने ज्यादा लोग आने लगे, अगर कोई इस तरह काम करे तो आजकल के जमाने में वो कितना मशहूर हो सकता है। तो आपको जरा सोचने की जरूरत है कि बेशक खुदा शिफा दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा शिफा नहीं दे सकता, खुदा शिफा दे सकता है, खुदा क्या मौजज़ा कर सकता है। हाँ बेशक खुदा मौजज़ा भी कर सकता है, खुदा को मौजज़ा करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। पर मौजज़े करने वाले लोग, ऐसे लोग जो कहें कि हमारे पास इख्तियार है मौजज़ा करने का, बीमारों को ठीक करने का, आए और ये बीमारियां ठीक कर दें, अगर वो कर सकते हैं तो फिर वो बहुत मशहूर होंगे। ज़्यादातर जो आपको टीवी पे देखने को मौजज़े मिलते हैं वो दरअसल मौजज़े नहीं होते, वो बस लोगों की कोई दर्द ठीक हो जाए, बाजू की दर्द ठीक हो जाए, आहिस्ता कुछ वक्त के बाद दुआ करने से आहिस्ता आहिस्ता शिफा आ जाए, दवाई खाने से शिफा आ जाए। तो दवाई खाने से जो शिफा होती है वो मौजज़ा नहीं है, बेशक वो शिफा है पर मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा एक बड़ी चीज़ है, किसी का बाजू ना हो बाजू आ जाए, किसी का हाथ सूखा हो 1 सेकंड के अंदर वो ठीक हो जाए, ये होगा मौजज़ा। तो यीशु मसीह इन सब चीज़ों पर इख्तियार रखते थे। बड़ी छोटी कोई बीमारी हो, यीशु मसीह के लिए कुछ काम भी मुश्किल नहीं था। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करें। लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते थे। कौन लोग कहते थे? जो लोग बदरू गिरफ्ता थे, बदरूहें यीशु मसीह की गवाही देती थी, बदरूहों को पता था कि यीशु मसीह कौन है, वो सुपर नेचुरल थी चीज़ें, वो यीशु मसीह को जानती थी। आम लोग यीशु मसीह के बारे में ये ख्याल नहीं रखते थे। तो बदरूहें भी यीशु मसीह की गवाही देती हुई नजर आती हैं, यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हुए नजर आती हैं। पर वो लोग यीशु मसीह को बेटा मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो लोग यीशु मसीह के वसीला से शिफा को हासिल कर रहे थे। ठीक, वो लोग बेटा मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो नबी की हद तक मानने के लिए तैयार थे कि एक नबी है जो शिफा देता है, पर वो अगला स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। तो शयातीन भी ईमान रखते हैं, इस बात से साबित होता है, और वो कांपते हैं, और वो कांपते हुए डरते हुए लोगों में से निकल जाते थे। पर लोग यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने पर ईमान नहीं रखते। इंजील की गवाही हमारे सामने है, बिल्कुल साफ है कि यीशु मसीह ही खुदा के बेटे हैं। तो आगे हम देख सकते हैं 13वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए। यीशु मसीह पहाड़ पर गए और अपने शागिर्दों को यीशु मसीह ने बुलाया, अपने पास बुलाया और वो यीशु मसीह के पास आए। और लिखा हुआ है, उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे के मुनादी करें। तो यीशु मसीह ने 12 को जो है चुना, किस चीज़ के लिए चुना? मुनादी करने के लिए चुना। यीशु मसीह 12 को चुनते हैं। यीशु मसीह 12 को सिर्फ मुनादी करने के लिए ही नहीं चुनते, यीशु मसीह 12 को जो है निजात के लिए भी चुनते हैं। मुनादी से पहले जो है निजात आती है। 11 को दरअसल इन 12 में से 11 को निजात के लिए चुना है यीशु मसीह ने। तो मुनादी से पहले निजात होती है, निजात होती है, लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं, ईमान लाते हैं, खुदा उन्हें चुनता है, फिर ही जो है लोग जो है वो तब्दील होते हैं, उनकी ज़िंदगी में काम होता है। तो हम देख सकते हैं इफ्सियों 1 बाप उसकी 4 आयत, इफ्सियों 1 बाप उसकी 4 आयत। ठीक, खुदा ने बना आलम से पहले चुना। तो यीशु मसीह क्या पहले निजात के लिए चुनते हैं? कब चुनते हैं? आयत के मुताबिक क्या लिखा हुआ है? बना आलम से पहले, दुनिया बनाने से पहले निजात के लिए चुनते हैं। और जिन लोगों को वो निजात के लिए चुनते हैं उन्हें मुकर्रर भी करते हैं। यहाँ पर जो मुकर्रर के लिए मुकर्रर लफ्ज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में, अपॉइंट जो बाइबल में लिखा हुआ है,
उसका बुनियादी मतलब है टू मेक, मतलब के बनाना। यीशु मसीह ने उन्हें बनाया। क्या बनाया? यीशु मसीह ने उन्हें अपने रसूल बनाया। रसूल का मतलब है भेजे हुए। यीशु मसीह ने उन्हें अपने रसूल बनाया। सिर्फ मुकर्रर ही नहीं किया, मतलब कि बनाया, बाकायदा तख्लीक, किसी मतलब जो बनाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी शख्सियत को, यीशु मसीह ने उन्हें वो जो है बनाया। मतलब लोग जो है लीडर बन जाते हैं। लीडरशिप में बनाना, जो रूहानी लीडरशिप है, हर तरह की रूहानी लीडरशिप जो चर्च में है, वो कौन बना रहा है? वो यीशु मसीह बना रहे हैं। यीशु मसीह उन्हें मुकर्रर कर रहे हैं, अपने शागिर्दों को, अपने रसूलों को। यीशु मसीह यहाँ पर मुकर्रर करते हुए हमें नज़र आते हैं। और इससे पहले कि यीशु मसीह ये काम करें, हम लूका की इंजील 6 बाब उसकी 12-13 आयत को देख सकते हैं कि यीशु मसीह ये काम करने से पहले क्या करते हैं। उन्हें मुकर्रर करने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्हें रसूल बनाने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। ठीक, तो यीशु मसीह ने इस काम को करने से पहले रात भर दुआ की। यीशु मसीह ने 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, पूरी रात दुआ की। हम कितनी दुआ करते हैं? सवाल ये है, हम कितनी दुआ करते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले? यीशु मसीह ने इस फैसले को लेने से पहले बाप के साथ वक्त गुजारा, बाप के साथ कम्युनियन में रहे पूरी रात, और फिर जाके यीशु मसीह ने चुना। तो हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है। लूका जो है खास इस बात के ऊपर जोर डालता हुआ हमें नजर आता है कि इस काम को करने से पहले यीशु मसीह ने दुआ की। ये अहम काम था। अहम काम को करने के लिए यीशु मसीह ने दुआ की। हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने से पहले कितने दुआ करते हैं? ये बहुत बड़ा फैसला था यीशु मसीह ने जो लेना था, और यीशु मसीह का इतना बड़ा फैसला जो है दुनिया को तब्दील कर देने वाला था। हम आगे देखेंगे भी कि किस तरह से इन लोगों के वसीला से यीशु मसीह ने दुनिया को तब्दील किया, और दुनिया को तब्दील कर देने के बड़े फैसले को लेने से पहले भी यीशु मसीह ने बाप के साथ रफाकत में वक्त गुजारा। यीशु मसीह हमें बाप के साथ रफाकत में वक्त गुजारते हुए नजर आते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। हमें भी इसी मॉडल को फॉलो करना चाहिए कि यीशु मसीह जिस तरह से दुआ करते हुए नजर आते हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले लेने से पहले दुआ करने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने उन्हें मुकर्रर किया किस चीज़ के लिए? कि उसके साथ रहें। यीशु मसीह ने अपने साथ रखने के लिए उन्हें मुकर्रर किया, और इसलिए मुकर्रर किया कि वो उन्हें भेजें और वो जो है लोगों को जो है आगे जाके कलाम सुनाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कलीसिया की बुनियाद है। कलीसिया की बुनियाद यहाँ पे रखी जा रही है। कलीसिया की फाउंडेशन यहाँ पे बनाई जा रही है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया की शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना। हम देख सकते हैं इफिसियों 2 बाब 20 आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। रसूलों और नबियों की नींव पर इसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तमीर किए गए। तो जो है बुनियाद जो रखी गई है, जो नींव जो रखी गई है, वो किस के ऊपर रखी गई है? नबियों और रसूलों के ऊपर कलीसिया की नींव और बुनियाद रखी गई है। कलीसिया की बुनियाद जो है वो नबियों और रसूलों पे रखी गई है। तो ये कलीसिया की, हमने क्या कहा कि कलीसिया की शुरुआत हमें यहाँ पर होते हुए नजर आती है कि यीशु मसीह ने रसूल अपने चुने हैं, और यीशु मसीह ने अपने रसूलों को किस लिए चुना है? कि आगे जाके वो मुनादी करें। मुनादी करने के लिए चुना है। पहले यीशु मसीह के साथ रहें, यीशु मसीह के साथ रफाकत में रहे, और मुनादी करने के लिए चुना है। रसूल का मतलब है भेजे हुए लोग। अब जो
اور رسول کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان میں، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے لاطینی زبان کی، اس کی ٹرانسلیشن انگلش زبان میں پتہ کیا ہے؟ مشنری. ہم لفظ بولتے ہیں نا مشنری، تو یہ جو ہے رسول لفظ سے نکلا ہے. رسول کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا گریک زبان میں، اس کے لاطینی مطلب سے لفظ نکلا ہے مشنری. اب یہ بات ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، 12 ہی شاگرد تھے یسوع مسیح کے، جن کو رسول کا لقب دیا گیا ہے، جن کو رسول ہونے کے لیے چنا گیا ہے. وہ رسول کیوں تھے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے انہیں رسول بنایا تھا، یسوع مسیح نے انہیں رسول کہا تھا. ایسے پھر نہیں ہیں، پھر نہیں ہو سکتے. مشنری ہو سکتے ہیں، کلام سنانے والے مختلف ہو سکتے ہیں لوگ، پر رسول یسوع مسیح کے جو 12 تھے ان کی جگہ پر کوئی نہیں ہو سکتے. باہر آپ جائیں گے، لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ رسول لگایا ہوا ہے، پر ان کے پاس رسولوں والا کوئی بھی کام نہیں ہے. رسولوں کو کس لیے چنا گیا؟ کہ وہ جو ہے لوگوں کو ٹھیک بھی کریں، کلام بھی سنائیں. خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا رابطہ تھا، وہ کلام سناتے ہیں، مکاشفہ آتا تھا. ایسے مکاشفے سنانے والے بہت سے ہوں گے، پر شفا مکاشفے کی آپ جو ہے پہچان نہیں کر سکتے نا، پر شفا تو نظر آتی ہے نا. ٹھیک، رسول کیا کام کرتے تھے؟ شفا دیتے تھے اور کلام سناتے تھے، خدا کے ساتھ رابطہ تھا. مکاشفہ کوئی ذہن میں سوچے، آپ کو نہیں دکھتا، پر شفا تو نظر آتی ہے ہمیں کہ شفا دے رہا ہے بندہ، 10 بندے مرے ہوئے زندہ ہو جائیں. پولس رسول نے مردوں کو بھی زندہ کیا. تو اگر مردے زندہ ہو رہے ہیں، باقاعدہ زندہ ہو رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ رسول ہے. پر یسوع مسیح کا رسول نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس وہ کام ہے نہیں جیسے یسوع مسیح کرتے تھے. تو یسوع مسیح نے ان 12 کو چنا، اور ان 12 جیسے پھر نہیں ہیں. پر یہ بات ہے کہ بھیجے ہوئے لوگ اسی طرح جو ہے یسوع مسیح جس طرح ان لوگوں کو بھیجنا منادی کرنے کے لیے ہم سب بھی بھیجے گئے ہیں. یسوع مسیح کا ارشاد اعظم کیا ہے کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں مرکز کی 1 باب اس کی 38 آیت کو دیکھ سکتے ہیں. مرکز 1 باب اس کی 38 آیت. اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں کی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا. ٹھیک، یسوع مسیح کس لیے نکلے تھے؟ منادی کرنے کے لیے نکلے تھے. یسوع مسیح نے منادی کی. یسوع مسیح کا کام کیا تھا؟ منادی کرنا. یسوع مسیح نے ان لوگوں کو کس لیے چنا؟ کہ منادی کریں. یسوع مسیح نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا کہ ہم بھی منادی کریں. ہم یسوع مسیح اور یسوع مسیح کے شاگردوں سے بڑے نہیں ہیں کہ ہم بولے کہ یسوع مسیح نے ان لوگوں کو چنا اس کام کے لیے، خود یہ کام کیا تو ہم کچھ اور کام کریں گے. یسوع مسیح نے جو کام کر کے دکھایا اس کا اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا، اور وہ ہمیں بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں. تو ہم لوگ اس کام سے بالاتر نہیں ہیں، ہم اس کام سے رہا نہیں ہیں. یسوع مسیح نے کیا، یسوع مسیح کے شاگردوں نے کیا، ہمیں بھی یہی کام کرنا ضرور ہے. ہم بھی اسی لیے بھیجے گئے. تو ان سینس ہر ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہر مسیحی ہی جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے. ٹھیک، ہر مسیحی ہی مشنری ہے کہ وہ اس کا مشن کیا ہے کہ مسیح کے نام کو جلال دے. بے شک خاص لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو مشنری قرار دیا اور وہ باقاعدہ اسی کام کے لیے صبح دوپہر شام یہی کیا کریں، پر ہر مسیحی ان سینس مشنری ہے کہ وہ بھی کلام کی منادی کرے. وہ بھی بھیجا گیا ہے. رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا. ہر مسیحی بھی بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ کلام سنائے. پر یسوع مسیح کے رسولوں جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع مسیح کے رسولوں جیسے ہم کام نہیں کر سکتے، کام کا ثبوت نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے. تو یسوع مسیح نے خاص یہاں پر بھی جو بات دیکھنے کی ہے کہ یسوع مسیح نے خاص انہیں چنا تاکہ وہ یسوع مسیح کا ساتھ رہے. یسوع مسیح انہیں مقرر کرتے ہوئے، بناتے ہوئے، ہم نے کہا کہ لفظ کا مطلب ہے بنانا، بناتے ہوئے، انہیں رسول بناتے ہوئے یہاں پر نظر آتے ہیں ہمیں 14ویں آیت میں.
और उनका काम क्या था, और वो बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखते थे। वो बदरूहों को निकाल सकते थे अपने खुदावन की तरह, क्योंकि उनको इख्तियार देने वाला उनका खुदावन था। यीशु मसीह ने उन्हें बदरूहों के ऊपर इख्तियार दिया था। वो हुक्म देते और ये सब काम हो जाता था। मुख्तलिफ जगहों पे हमें नजर आता है पौलुस रसूल भी बदरूहों को निकालते हुए हमें आगे नजर आते हैं। यीशु मसीह के शागिर्द भी ये सब काम करते थे, उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं था। यीशु मसीह के शागिर्द भी बहुत सी जगहों पर जाके बदरूहें निकाल रहे थे। ये हमारे पास इस चीज़ की गवाही अंजीलों में मुख्तलिफ जगहों पर मिलती है। 16वीं आयत में लिखा हुआ है, अब वो ये हैं शागिर्दों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। हम पूरी इनके ऊपर डिटेल स्टडी तो नहीं कर सकते शागिर्दों के ऊपर, पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये शागिर्द कौन थे। इससे पहले कि हम इस चीज़ की तरफ बढ़ें कि शागिर्द कौन थे, देखने वाली बात यह है कि इनमें से तकरीबन जो है 6 जो थे, इनमें से जो थे वो मछेरे थे। तो मछेरे थे, बहुत बड़े कोई लोग नहीं थे। यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़े समझदार लोग नहीं चुने। 7 इनमें से तकरीबन मछेरे थे। कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग, बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं चुने, बल्कि ऐसे लोग चुने जो कि हम देख सकते हैं पहला करंथियों 1 बाब उसकी 26 से 28 आयत में। पहला करंथियों 1 बाब 26 से 28 आयत, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तुम याद करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के अमीरों और फकीरों को बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो फख्र करे वो खुदावंद का फख्र। आमीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेवकूफ़ों को, नाचीज़ों को, बेवजूदों को यीशु मसीह ने चुना। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना जो कि सोसाइटी में जिनका कोई भी नाम नहीं था। वही बात है जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनके बारे में लोग क्या कहते थे कि ये तो अनपढ़ हैं, पर हमने इन्हें यीशु मसीह के साथ देखा है। ये इनकी पहचान क्या थी कि ये यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे। इनकी पहचान मसीह से थी। उनकी अपने अंदर अपनी कोई बड़ी लियाकत नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत ही ताकतवर शख्सियत है। तो हम देख सकते हैं 16वीं आयत में लिखा हुआ है शमौन के बारे में। शमौन जिसका नाम पतरस रखा, पहला शागिर्द जिसका नाम हमें देखने को मिलता है वो पतरस था। पतरस उनका लीडर था। पतरस आगे हमें बहुत सी जगहों पे सबके बिहाफ पे बात करता हुआ भी नजर आता है कि हम सब ये चीज़ मानते हैं। उनका लीडर था पतरस। पतरस जो था वो भी ऐसा ही शख्स था जिसके बारे में हमने करंथियों में बात की। मछेरा था। मछेरों की उस टाइम पे क्या वैल्यू थी, आज के जहन आज के वक्त में मछेरे की क्या वैल्यू है, ना उस वक्त में कोई खास लोगों की निगाह में वैल्यू थी ना आज है। पर ये यीशु मसीह का चुना हुआ शागिर्द था। बहुत से बादशाहों को लोग नहीं जानते हैं, पर इस मछेरे को लोग जानते हैं क्योंकि इसकी पहचान मसीह की वजह से थी, इसकी निस्बत मसीह से थी। लोग इस मछेरे को जानते हैं, पर इसके अंदर भी बहुत सी कमियां थी। इसने यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह को छोड़ के भागा। तो ये शख्स भी जो था, इसके अंदर भी हमें कमियां देखने को मिलती हैं। यीशु मसीह उसे बाद में बहाल करते हैं और वो यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार 3 बार करता है। 3 बार यीशु मसीह का उसने इनकार किया और 3 बार ही जो है यीशु मसीह के साथ वो अपनी मोहब्बत का इकरार भी करता हुआ नजर आता है। फिर हम देख सकते हैं आगे 17वीं आयत में, और जब्दी का बेटा याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम वानरगिस यानी गर्ज के बेटे रखा। तो यहाँ पर 2 अशखास का हमें जिक्र मिलता है, याकूब और यूहन्ना। ये दोनों भाई थे।
ये दोनों जो थे यीशु मसीह के शागिर्द थे, तो यीशु मसीह के करीब तरीन शागिर्द जो थे ये तीन थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। और ये हम देख सकते हैं कि पहाड़ पर भी यीशु मसीह के साथ हमें नज़र आते हैं। जब यीशु मसीह जो है अपने चेहरे को बदल कर उन्हें अपना जलाल दिखाते हैं, तो याकूब जो है और यूहन्ना जो है ये भी कामिल लोग नहीं थे, इनके अंदर भी कमियां थी। ये लोग भी उस गांव के ऊपर आग भेजना चाहते थे कि इस गांव के ऊपर आग आ जाए, ये लोग यहाँ पर ही खत्म हो जाएं। तो ये गरजने बरसने वाले थे, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में, यीशु मसीह ने उन्हें नाम दिया था गरज के बच्चे, गरजने वाले लोग थे ये लोग भी। और ये यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी माँ को भेजते हैं कि हमें जो है अपने साथ दाएं बाएं अपने तख्त के बैठने का हमें मौका दे कि तेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैन हम बने। इनके अंदर भी वो गुरूर का अंसर नजर आता है कि वो भी चाहते थे कि हम भी आगे आए, हमारा नाम भी बड़ा हो, यीशु मसीह के करीब तरीन हम हो। ये चीज़ उनमें नजर आती है, उनमें भी ये कमी नजर आती है। फिर आगे हमें इंद्रियास का जिक्र मिलता है। इंद्रियास जो है मुख्तलिफ लोगों को यीशु मसीह के पास हमें मुख्तलिफ अनाजील में लाते हुए नजर आता है। वो ये इंद्रियास वही शख्स है जो पतरस को जो है यीशु मसीह के पास लेकर आया, उस बच्चे को यीशु मसीह के पास लेकर आया जो जिसके पास रोटियां और मछलियां थीं। तो इंद्रियास जो है हमें अनाजील में यीशु मसीह के पास मुख्तलिफ लोगों को लाते हुए नजर आता है, पर यह भी वो शागिर्द है जिसने यीशु मसीह को आखिर में छोड़ दिया। पिछले शागिर्दों ने भी छोड़ दिया यूहन्ना के अलावा, और जो है इसने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया। तो ये भी लोग जो है छोड़ते हुए नजर आते हैं यीशु मसीह को। इनकी जिंदगी में भी हमें कमी नजर आती है। फिलिप्पस जो है वो भी जो है उसके अंदर भी हमें कमी नजर आती है। फिलिप्पस जो है ये भी यीशु मसीह के पास लोगों को इंद्रियास के साथ लाता हुआ नजर आता है। जब वो यूनानी लोग आए थे तो इंद्रियास और फिलिप्पस जो है ये यीशु मसीह के पास उन यूनानी लोगों को लेकर आए, पर जो है ये भी सोचने समझने में इसकी भी कमी नजर आती है, क्योंकि वो यीशु मसीह को कहता है कि मैं बाप दिखा हमारे लिए यही काफ़ी होगा। यीशु मसीह ने उसे जवाब देता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसमें भी सोच की कमी नजर आती है। हमारे अंदर भी ये खुदा की बातों को समझने में बहुत सी कमियां होंगी। हमें भी याकूब और यूहन्ना की तरह गुरूर नजर आता है, मुख्तलिफ चीज़ें हमें इनमें नजर आती हैं। पर जब हम इन चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, इनके मुख्तलिफ कमियों के बारे में देख रहे हैं, पर इनके जिंदगियों को अगर आप देखें ना, तो इनकी जिंदगियों में कमियां जहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, तो इनकी जिंदगी में तरक्की भी आपको नजर आती हुई नजर आती है। इसकी बड़ी मिसाल यूहन्ना जो जिसका हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाता हुआ, अपने आप को बड़ा कहता हुआ नजर आता है, बड़ा जो है जोरावर हमें नजर आता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो जो है आगे हमें मोहब्बत के बारे में बताता है कि मोहब्बत यह है कि हम अपने भाइयों के लिए जान दें, अपने आप को देने के बारे में बताता है। अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो वो खुदा को नहीं जानते। तो इनकी जिंदगी में बेशक कमियां थी, पर इनकी जिंदगी में एक हमें तरक्की का अंसर भी नजर आता है कि मसीही जिंदगी में किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं और किस तरह से ये लोग तरक्की करते हैं, ये हमें नजर आता है। तो ये बड़ी जो है देखने वाली बात है कि किस तरह से ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें कमियां थी, पर इन लोगों की जिंदगी में मसीही तरक्की भी नजर आती है। और फिर जो है बरतलमाई का जिक्र हमें मिलता है। बरतलमाई जो है ये नतनएल था, ठीक है। आलम कहते हैं कि नतनएल के दो नाम थे, एक नतनएल था और बरतलमाई था। अब एक आदमी के दो नाम हो सकते हैं, जिस तरह मरकस जो यूहन्ना भी कहलाता है, तो एक आदमी के दो नाम हो सकते हैं। तो इस बरतलमाई का नतनएल नाम था। तो ये याद दहानी के लिए भी हमारे लिए अच्छा है कि हम ये चीज़ याद कर सकें। मेरे लिए भी ये नई बात थी, मैंने भी सीखी, हम सब भी ये सीख सकते हैं। नतनएल एक जो है पाक दिल का शख्स जिसके बारे में यीशु मसीह गवाही देते हैं वो नज़र आता है, पर ये पाक दिल का शख्स भी जो है ये भी यीशु मसीह को छोड़ के आगे चला जाता है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है मत्ती जो कि एक टैक्स कलेक्टर था, टैक्स लेता था, वो शख्स जो है हमें मत्ती नज़र आता है। तो मत्ती जो था महसूल लेता था, पर
यीशु मसीह ने उसको बुलाया और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो उसने भी काफ़ी नुकसान उठाया, पैसे का अपना नुकसान उठाया यीशु मसीह के पीछे। और फिर जो हमें तोमा का जिक्र मिलता है। तोमा एक जो है दिलचस्प शख्सियत है। उसकी ज़िंदगी हमें बेशक उसकी ज़िंदगी में हमें डाउट नज़र आता है, शक नज़र आता है, पर बहुत सी जगहों पर वो उसकी ज़िंदगी में हिम्मत भी हमें नज़र आती है कि यीशु मसीह ने कहते हैं कि आओ हम चलें एक जगह पर जहाँ पे उसे पता था कि ख़तरनाक जगह यीशु मसीह को लोग मारने वाले हैं। तो वहाँ पर कहते हैं आओ हम इसके साथ जाके मरे। वो उसके साथ जाके मरने के लिए भी तैयार था और वो वहाँ पर चला भी जाता है। तो उसकी ज़िंदगी में भी हमें एक हिम्मत का अंसर नज़र आता है। बेशक उसकी ज़िंदगी में शक भी था। फिर आगे जो है हम देख सकते हैं कि याकूब, एक और याकूब का हमें जिक्र मिलता है। यीशु मसीह के 2 याकूब जो थे शागिर्द थे। हमें इस याकूब के बारे में जो है ज़्यादा नहीं पता। तो जो है और फिर लिखा हुआ है और तदी जो है ये भी यीशु मसीह के शागिर्द था। इसके बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं पता। तदी जो है बेशक यीशु मसीह का शागिर्द था और इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। पर इसका नाम दूसरा जो है वो यहूदा भी है। तो और ये यीशु मसीह से पूछता है कि तू जो है अपने आप को लोगों को जाहिर क्यों नहीं करता। अनाजील में हमें ये बात उसके मुंह से सुनाई देती है कि तू अपने आप को जाहिर क्यों नहीं करता, कि तू कर दे। वो अपने आप को यीशु मसीह से ज़्यादा समझदार समझता है कि तू चाहता है लोग तुझे जाने तो अपने आप को लोगों पे जाहिर कर दे। उसके अंदर वो चीज़ नज़र आती है कि वो यीशु मसीह से ज़्यादा समझदार है। ये चीज़ हमें मिलती है। फिर आगे हमें मिलता है शमौन कनानी। ये जो कनानी जिन लोगों का नाम ख़ास हमें मिलता है, ये लोग ऐसे लोग थे जो दहशतगर्द समझे जाते थे। मुल्क के लोग ऐसे समझे जाते जो दहशतगर्द, रोमी ने दहशतगर्द समझते थे, जिनके नाम के आगे कनानी आता था। तो शमौन के ख़ास बारे में बताया गया। ये दूसरा शमौन जो था, एक शमौन पतरस था और ये दूसरा शमौन जो था यीशु मसीह का जो शागिर्द था, वो जो है एक आमतौर पर दहशतगर्द समझा जाता है। यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स को चुन लिया, यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने चुन लिया, जो ज़ाहिरी तौर पे यीशु मसीह के रसूलों में से तो था, पर जो कि ईमानदार नहीं था, वो चोर था, जिसके बारे में हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है कि वो चोरी करता था और वो यीशु मसीह को आखिर में उसी लालच में, पैसे के लालच में बेच देता है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ लोग कमज़ोरियों से भरपूर। हम भी ऐसे ही लोग हैं, हम भी ऐसे ही लोग हैं। शायद हमने भी काफ़ी बार यीशु मसीह का इनकार किया, शायद हम भी अपने आप को बड़ा बेहतर लोगों से दिखाना चाहते हो। हमारे ज़हन में भी हम बहुत बड़ी कोई शख्सियत बन के बैठे हों। हम भी बहुत बार समझते हो कि खुदा से बेहतर जानते हैं। हम में भी मान की कमी हो, हम भी शक करने वाले लोग हैं। पर बात आखिर में यही है कि यीशु मसीह ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन लोगों में कमियां हैं, पर जिन लोगों में कमियां हैं उनकी कमियों को यीशु मसीह दूर करते हुए भी नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा, और ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए आखिर में अपनी जान भी देंगे। ठीक, यीशु मसीह के 11 जो 12 शागिर्द थे, उनमें से 11 जो थे उन्होंने अपनी जान जो है लोगों के हाथों गंवाई, उनको जो है शहीद किया गया। सिर्फ यूहन्ना जो था उसी ने जो है एक कुदरती मौत जो है उसको लिया। उसके अलावा बाकी सब लोग जो थे इनको मारा गया लोगों के हाथों। ये लोग मारे गए। यूहन्ना को भी मारने की कोशिश की गई थी, उसको भी जो है जलाने की कोशिश की गई थी, पर वो बच गया। तो ये लोग वो थे जिनकी जिंदगी में कमी हमें देखने को मिलती है, पर इस कमी में भी खुदा के साथ वफादारी की कोशिश उनकी जिंदगी में हमें बड़ी नजर आती है। इस हद तक वफादारी के वो अपनी जान यीशु मसीह के लिए दे देते हैं। और वो किस वजह से यीशु मसीह के लिए अपनी जान देते हैं? क्योंकि वो जो काम था यीशु मसीह ने दिया था वो कर रहे थे।
मुकर्रर किया था किसके लिए? मुनादी करने के लिए। मुनादी ना करते, घरों को जाते, घर में बैठे रहते तो बहुत अच्छा था, पर ये लोग कमजोर लोग थे, पर स्ट्रगलिंग लोग थे, पर ईमानदार लोग थे, कोशिश करने वाले लोग थे। और उसी कोशिश में, उसी वफादारी की कोशिश में, उसी फरमाबरदारी की कोशिश में इन लोगों ने अपनी जान मसीह के लिए दी, ये कीमत देने के लिए तैयार थे। यीशु मसीह के खुदावंद ये सिर्फ बात और किताब और लिखने में ही नहीं मानते थे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो लिख देते थे, ऐसे नहीं मत्ती ने सिर्फ लिख दिया, यूहन्ना ने लिख दिया, वो लोग उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थे। और उन्होंने ये साबित किया अपने काम से। तो ये हमारे लिए देखने की बात है कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह जब हमें मुकर्रर करता है, हमें कीमत भी चुकानी है यीशु मसीह के लिए। शायद हमारे लिए हमेशा यही कीमत ना हो कि हमें कोई जान से मारने के लिए तैयार हो, पर हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कीमत भी चुकानी है, जो कि पीछे लोग चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग शिफा तो चाहते थे पर शाफी नहीं चाहते थे। ये लोग यीशु मसीह को सिर्फ बात ही में नहीं बल्कि अपने काम से साबित करते हैं कि वो यीशु मसीह को चाहते हैं दुनिया की हर चीज से बढ़कर, और वो वफादारी दिखाते हैं कि यीशु मसीह ने जो काम उन्हें दिया वो करके, जो कि मुनादी है, हमें भी वही काम करना है। यीशु मसीह के लिए कीमत चुकानी है और यीशु मसीह के लिए काम करना है, यीशु मसीह के जलाल के लिए काम करना है। और फिर यहाँ पर देखते हैं हम आगे लिखा हुआ है, वो घर में आया, 20वें आयत में लिखा हुआ है, और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। यहाँ पर देखने वाली बात यह कि यीशु मसीह के ये रिश्तेदार थे जो यहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ते हैं और यीशु मसीह को बेखुद कह रहे हैं। यीशु मसीह के साथ वो लोग रहे, यीशु मसीह को बेवकूफ़ कह रहे हैं। समझने की बात यह है कि यीशु मसीह के कलीसिया में होकर जो है हम भी शायद खुदा को बेवकूफ़ समझ सकते हैं। कलीसिया, ज़ाहरी कलीसिया में हम हो सकते हैं और खुदा को बेवकूफ़ हम समझ सकते हैं कि खुदा से शायद हम बेहतर जानते हैं। कलीसिया में आ जाना, कलीसिया में बैठ जाना, दुआ कर लेना, इबादतों में शरीक हो जाना किसी चीज़ की भी ज़मानत नहीं है। यहूदा इस्करियोती के लिए भी जो है वो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के तमाम तर तकरीबन उसने सरबंद सुने थे। इन लोगों ने भी यीशु मसीह की काफ़ी बातें सुनी होगी, पर यीशु मसीह को वो बेवकूफ़ समझते थे, बेखुद समझते थे। आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी यही बात है कि यीशु मसीह जो है, अगर आप इंजील को पढ़ें तो आप सिर्फ इसी बात पे नहीं रह सकते कि यीशु मसीह जो है बस एक अच्छा टीचर था या बस एक नबी था या फिर बहुत कोई अच्छा जो है मोहब्बत करने वाला कोई शख्स था या फिर डॉक्टर था। ऐसे नहीं, यीशु मसीह अगर आप इंजील को ईमानदारी से पढ़ें, ज़हन खोल के पढ़ें, तो आपको इस कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा जिस कंक्लूजन पे यीशु मसीह के शागिर्द पहुंचे कि यीशु मसीह खुदावंद है और ज़िंदगी की बातें उसी के पास हैं, हम किसके पास और जाएं। और बाइबल में कोई ऑप्शन नहीं देती। अगर आप सिर्फ यीशु मसीह को अच्छा टीचर ही और सिर्फ एक नबी ही मानते हैं तो अंजील की गवाही आपके बारे में ये है, बामुताबिक अंजील आप जहन्नम में जाएंगे। हमें अगला स्टेप लेना है, सिर्फ यीशु मसीह को अच्छा टीचर ही नहीं मानना, अच्छा शख्स ही नहीं मानना, बल्कि उसे खुदा का बेटा मानना है। वो गवाही जो खुदा पिछले अब्वाब में बेटे के बारे में देता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। शयातीन जिसके बारे में ये गवाही देते हैं, खुदा बारहा बेटे के बारे में ये गवाही देते हुए नजर आता है। हमें उस गवाही को मानना है और उस गवाही को मान के शागिर्दों की तरह रवैया रखना है। क्या रवैया था उनका कि वो जो यीशु मसीह ने काम दिया उसके साथ वफादार थे, मुनादी का काम दिया, मुनादी करते थे। यीशु मसीह ने कीमत चुकाने के लिए कहा, वो कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए। तो हमें भी इन्हीं लोगों की तरह बनना है। बेशक ऐसा ही नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के बस सिर्फ मुनादी करें, हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, पर जो मेन काम है वो ये है
کہ سب چیزوں سے پہلے، باپ ہونے سے پہلے، بیٹے ہونے سے پہلے ہم یسوع مسیح کے ہیں، اور ہماری دنیا کی ہر الیجنس سے پہلے ہماری یسوع مسیح کے ساتھ الیجنس ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں ہر رشتے سے پہلے، سب سے بڑھ کے کہ یسوع مسیح کے ہم میں یسوع مسیح نے اپنے عالم سے پہلے چنا، عالم سے پہلے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا تھا، آج بھی وہ محبت کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہمیں بھی اس کے ساتھ محبت میں آگے بڑھنا ہے، اور یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح جس طرح انہوں نے یسوع مسیح کے لیے قربانی دی، ہمیں بھی قربانی دینی ہے اور یسوع مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا ماننا ہے، کیونکہ انجیل کی یہی گواہی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔